آج پھر جسمانی ریمانڈ کی افتتاح کی گئی، آپ نے کیا دلائل دیے اور عدالت کی جانب سے کیا حکم صادر کیا گیا ہے؟ دیکھیں ہمارے دلائل تو ایک طرف، لیکن عدالت نے صحیح بات تو یہ ہے کہ عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے ان کی پذیرائی نہیں کی ہے، اور ویسے بھی ہماری تو پہلے دن سے شکایات یہی تھی کہ آپ ان کو کیوں اتنی زیادہ ڈھیل دے رہے ہیں، بار بار جسمانی ریمانڈ کیسے آپ دے رہے ہیں؟ اگرچہ جسمانی ریمانڈ وہ کہتے تھے نہیں ہے، کیونکہ جسمانی ریمانڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جسم کو لے کر جانا تھانے میں اور یا ہیڈ کوارٹر میں، اور پھر جو ہے جگراتا دینا یا جس انداز سے تفتیش کرنا ہو مقصود ہو، تو یہاں تو صرف آپ کو تفتیش کے لیے ہی ہے، اور وہ تفتیش پر اگر ضمانت پر بھی ہو تب بھی تفتیش ہو سکتی ہے۔ جو دلائل دیے گئے ہیں وہ بتائیں کہ وہ کیا دلائل دیے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ براہ راست جو ہے ٹرانسفر کر دیے ہیں خزانے میں، سرکاری خزانے میں منتقل کر دیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے خود، جو وہ نیشنل کرائمز ایجنسی برطانیہ نے جو بھیجے تھے رجسٹرار کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں، جس میں محترم ریاض ملک صاحب کے ذمے 460 ارب روپیہ ان پر ڈالا گیا تھا کہ انہوں نے جو زمین سندھ میں خرید کی ہے وہ کم قیمت پہ خرید کی ہے، اور 460 ارب روپیہ ان کے ذمے سپریم کورٹ نے ڈال کر اور قسطیں کر دیں، اور رجسٹرار کو کہا کہ آپ ایک اکاؤنٹ بنائیں گے جس میں یہ 460 ملین روپیہ جب تک نہیں آئے گا آپ اس کو امپلیمنٹیشن کمیٹی جو ہے بنا دی گئی۔ تو چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں یہ 2-3 دن پہلے جو ہوا تھا، میں نے پچھلی اس پہ عرض کیا تھا، انہوں نے ریاض ملک صاحب کو بھی بلایا ہوا تھا، تمام فریقین کو بلایا ہوا تھا۔ انہوں نے اسی پچھلے ہفتے جو فیصلہ کیا ہے، انہوں نے اس کے تابع 35 ارب روپیہ، 190 ملین کا 35 ارب روپیہ بنتا ہے، وہ 35 ارب روپیہ انہوں نے وہاں سے نکال کے سپریم کورٹ کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ جو کہ بحریہ ٹرسٹ لمیٹڈ کے اکاؤنٹس باجبات کے زمرے میں بنایا گیا تھا، اس میں سے نکال کے انہوں نے کہا کہ یہ وفاقی حکومت کے سپورٹ کر دیں، سرکاری خزانے میں دے دیں۔ 190 ملین سیدھا جو ہے وہ سرکاری خزانے میں آ گیا۔ تو سائفر یہ کیس تو ختم ہو گیا، القاعدہ کا القادر والا کیس ختم ہو گیا۔ آپ کی ٹیم اس 5 یا 3 روزہ ریمانڈ سے 15 نومبر سے اب تک مسلسل تفتیش کر رہی ہے، کیا نکالا انہوں نے؟ یہی نکالا ہے کہ 190 ارب جو ہے ان کو نہیں ملی کمیشن۔ اگر وہ برآمدگی کرتے اپنے کھاتے میں تو وہ اس میں سے اپنی کٹوتی لیتے، وہ سیدھا کا سیدھا 100۔ اور ہم پہلے دن سے کہتے آئے ہیں کہ بھائی یہ نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے اس نے براہ راست رقم برطانیہ سے جو ہے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں بھیجے ہیں۔ تو اگر آپ کو مقصود ہے یہ 190 ملین پاؤنڈ، تو آپ سپریم کورٹ میں درخواست دے کے یہ جہاں بھی چاہتے ہیں منتقل کروا لیں، نیب لینا چاہتی ہے لے لے، یا وفاقی حکومت اگر لینا چاہتی ہے تو کابینہ جو ہے قرارداد دے یا ایک درخواست دے سپریم کورٹ میں اور لے لے۔ ہم تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے پاس ایک ڈھیلا اس میں سے نہیں آیا، تو پھر آپ عمران خان سے کیوں تفتیش کر رہے ہو، بشرا بی بی سے کیوں تفتیش کر رہے ہو، جب ان کے پاس تو آیا ہی نہیں ہے، اور ان کا لینا دینا بھی اس میں نہیں ہے جو 190 ملین پاؤنڈ جو براہ راست آئے ہیں۔ اور یہ بات پچھلے ہفتے طے کر دی سپریم کورٹ نے کہ 190 ملین پاؤنڈ 35 ارب روپیہ وہ انہوں نے ٹرانسفر کر دیا اپنے اکاؤنٹ سے، جو رجسٹرار کا ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ تھا، جو 460 ارب روپے کے جو ملک ریاض صاحب پر جو ہے وہ واجبات طے کیے تھے سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا، اس کی امپلیمنٹیشن میں جو اکاؤنٹ کھلا ہوا تھا اس میں سے سپریم کورٹ نے
190 मिलियन पाउंड के बराबर 35 अरब रुपया वो हुकूमत पाकिस्तान को तरसील करके दे दिया। सो वो 190 मिलियन वाला किस्सा खत्म हो गया। जो उसके अलावा मलिक रियाज ने उसमें जमा करवाए थे 460 अरब रुपए के देने में जो बाकी जमा करवाए थे, वो उन्होंने कहा कि ये सिंध हुकूमत, क्योंकि ये सिंध की जो है जमीन थी, अराजी थी, जिसको मलिक रियाज साहब ने लिया था, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कीमत कम दी गई है, जिसका तायन करने के बाद 460 अरब का उन्होंने उनके जिम्मे वाजबात लगाए और जिस पर अकाउंट रजिस्ट्रार के डेजिग्नेटेड था, उसमें से वो तय हो गया और बाकी की रकम जो थी वो ज़ाहिर सिंध गवर्नमेंट को उन्होंने कहा तरसील कर दी जाए। और उसमें इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त तक जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट की ओवर वॉच रहेगी उस पर इम्प्लीमेंटेशन, जब तक 460 अरब रुपया वो मुकम्मल उनका जो है वाजबात अदा नहीं कर दिए जाते। सो वो ये बताइएगा कि अभी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो नया सिलसिला शुरू हुआ है इद्दत में निकाह वाला, आज उसके खिलाफ मजहबी तबकों का बाहर एहतजाज भी हुआ, इस तरह का मामला आपने सुना होगा। ये बताइएगा कि इस केस में आप क्या समझते हैं, बतौर कानूनदार चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ क्या होने जा रहा है और उनके लिए क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं? कुछ भी नहीं है। देखें, ये एक ऐसा विशेष किस्म की एक ये कैंपेन चलाई जा रही है, उनको सिर्फ दागदार करने के लिए, सिर्फ मीडिया ट्रायल के लिए की जा रही है। ऐसी ही कंप्लेंट तो पहले डिसमिस कर दी है 2 दिन पहले उसी मैजिस्ट्रेट ने। उन्हीं मैजिस्ट्रेट साहब ने ऐसी ही कंप्लेंट को उस मुद्दई ने जिसने दायर की थी, उसने वापसी की दरखास्त दी और अदालत मैजिस्ट्रेट ने उसको जो है वापस देकर उसको खारिज कर दिया उस मुकदमे को। सुने, अभी जो दरखास्त मानिका से दिलाई गई है वो अभी इब्तदाई स्टेज पर है, अभी वो इंक्वायरी स्टेज पर है, अभी वो सरसरी उसके शवाहिद होंगे, अभी तो तलब भी नहीं किसी को किया गया है। वो 203 ज़ाब्ता फौजदारी में खारिज भी हो सकती है। सो इसलिए उसमें तो ना तो खान साहब को कोई फिक्र है और ना ही खान साहब या बुशरा बीबी पर कोई हर्फ आ सकता है। वो इतनी फजूल दरखास्त है कि उसको अगर यहाँ लाके एक ड्रामा रचाया गया है, इस तरह का आज किया गया है, आपके सामने जो ड्रामा रचाया गया है, इस तरह के कमोशन चाहते हैं, ये एक फसाद चाहते हैं इस मुल्क में, और उस फसाद को के जरिए ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इलेक्शन को मौखिर कराया जाए, जो पीटीआई नहीं होने देगी। खान साहब ने कहा है हम हर कीमत पर इलेक्शन लड़ेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। हमारे जो है ये अपना चीते जो हमारे कायम और दायम और खड़े हैं, पहला उन्हीं का इस्तेहकाक है, हम उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे और इंशाअल्लाह टिकटें भी उन्हीं को मिलेंगी। नैब तफ्तीश, नैब आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट आज से नहीं बहुत पहले से कह चुकी, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक इदारा है, ये शिकस्त और रेख्त और तोड़ फोड़ करने का एक इदारा है, ये सियासी इंतकाम लेने का एक इदारा है। ये हमेशा हुकूमत बदकिस्मती से इसको बांदी और लौंडी बना के इस्तेमाल करती है ताकि किसी को जो है पाबा सलासल किया जाए, और फिर देखें किस तरह से जो बादशाह सलामत तशरीफ लाए हैं उनके लिए किस तरह से नैब सहूलतें पैदा करती जा रही है और उनके किस तरह से केसेस जो हैं वो दाखिल दफ्तर करके खारिज किए जा रहे हैं। और ये कल से जो शुरू होने जा रहा है बादशाह सलामत का मुकदमा अदालत हालिया में, उन्होंने कहा है कि डे टू डे चलाएंगे माशाअल्लाह, और उनका भी रिजल्ट आज ही आपको बता देता हूं कि माशाअल्लाह उनको भी मुखलसी मिल जाएगी, क्लीन स्लेट, और फिर कहेंगे देखा मैं तो पहले ही कहता था कि ये मुकदमात हैं बेगुनाह। इस तरह से ना बेगुनाही साबित होती है, ना इस तरह से अवाम कोई तस्लीम करने को तैयार है। ये केसेस जो हैं धरती माँ को लूटा है, शरीफों ने लूटा है, इस तरह से लूटा है। और ये कहते हैं अकामे पे निकाला गया, ओ भाई अकामे पे नहीं है, वो 10 वॉल्यूम्स हैं, जरा 10 वॉल्यूम्स देख लो, आपके काले करतूत वहां पर जो है सारे के सारे जो है वो आश्कारा हैं, और उन करतूतों में आपकी जो है हुदैबिया पेपर मिल्स भी है और आपके लंदन के फ्लैट्स भी हैं, 1 हाइड पार्क भी है, उसमें जरा 6 ऑफशोर कंपनियां भी हैं, शेल कंपनियां, काजी फैमिली के अकाउंट्स भी हैं, इसहाक डार का एक इकबाल जुर्म का कन्फेशनल स्टेटमेंट भी है।
इतनी ज्यादा शवाहिद है, इतने ज्यादा बंडल के बंडल इनके जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हैं, और जो जिस तरीके से लेयरिंग की गई और जिस तरह से इन्होंने फ्रॉड करके पाकिस्तान की दौलत लूट कर इन्होंने बाहर प्रॉपर्टीज खरीदी है। आज इनके माशाल्लाह फर्जंदे अर्जमंद जो हैं वहाँ बहुत बड़ी रियल एस्टेट के टाइकून बने हुए हैं लंदन में। सो इसलिए ये कहना कि जी ये माशाल्लाह बेगुनाह है, तो इससे बड़ी जो है मैं समझता हूँ बदकिस्मती नहीं है। इस्लामाबाद में साइबर केस की बात हुई है, तो कल वहाँ पर चेयरमैन पीटीआई को वहाँ पे पेश किया जाएगा अडियाला जेल से निकाल। अभी तक तो मुझे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अभी तक ये फिर वही शाखसाना करेंगे कि देखें जी उनकी सिक्योरिटी का मसला है, हम उनको सिक्योरिटी, जब मैं गवर्नर था तो मुझे भी कहते थे सिक्योरिटी प्रॉब्लम है जी, आप वहाँ जो है वो कैंसिल कर दें। मैं कह रहा था मैं तो जा रहा हूँ भाई, सिक्योरिटी जाने तुम जानो। सिक्योरिटी का रियासत का काम है सिक्योरिटी फराहम करना। ओपन ट्रायल ही एक ऐसा ट्रायल है जिसमें इंसाफ होता हुआ नजर आता है या आना चाहिए। अगर आप सीक्रेटिव इस तरह से ट्रायल करते हो जेलों में, तो उसमें तो भाई ना किसी मीडिया को जो है इजाजत है अंदर जाने की, ना किसी वकील को अंदर जाने की इजाजत है, ना पब्लिक को अंदर जाने की इजाजत है। वहां तो आप इस तरह से बंद कमरे में जो इंसाफ होते हैं, बंद कमरे के जो फैसले होते हैं, उसको कोई नहीं मानता, ना आवाम मानती है, ना कौम मानती है, ना मुल्क मानता है। इंसाफ के ऐवानों में ओपन होना चाहिए। दुनिया के यही कानून है, 352 ज़ाब्ता फौजदारी हमारा भी यही कहता है, ओपन ट्रायल ओपन कोर्ट्स में होना चाहिए। इसलिए सिक्योरिटी का मसला अगर है तो वो इनका है सिक्योरिटी का मसला, और उसमें अगर ये सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो फिर मुल्क चलाना छोड़ दें। ये केयर टेकर जो चेयर टेकर गवर्नमेंट है, फिर ये अपने आप को फारिग करके तो फिर मुस्ताफी हो जाए तो बेहतर है। अगर ये सिक्योरिटी नहीं फराहम कर सकते, किसी को अदालत आलिया या अदालत में पहुंचाने के भी लायक नहीं है, तो फिर ये मुस्ताफी हो जाएं, फिर ये माने कि हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते हैं, तो फिर किस लिए ये केयर टेकर और चेयर टेकर बने हुए हैं और इतने इनके अखराजात हो रहे हैं, और होम मिनिस्ट्री है और डिफेंस मिनिस्ट्री है और इंटीरियर मिनिस्ट्री है और फलानी मिनिस्ट्री है। फिर ये किस बात के पैसे ले रहे हैं, आवाम के पैसों से ये पल रहे हैं, और ये जो है इन्होंने सारे इतना लल्ले तल्ले बना रखे हैं। सवाल है ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो जो 190 बिलियन अकाउंट वापस हो गए हैं, क्या उसके बाद आप इस केस में 265K की एप्लीकेशन दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं? हमने पहले बिल्कुल दे रखी है। हमने बेल एप्लीकेशन जाएगी। देखें, एक चीज तो ये है कि हमने वो जो चीफ जस्टिस साहब ने या हमारी एक खारिज की और 8 को पजीरा की और उसमें रेस्टोर कर दी बेले खान साहब की। हम गए हुए हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, वो हमने पहले ही कर रखी है नालिश। लेकिन चूंकि यहाँ फिजिकल रिमांड देना शुरू कर दिया है, तो हम इस पे संजीदगी से सोच रहे हैं कि क्या हम बेल आफ्टर रेस्ट की मूव कर दें। तो ये आज हम फैसला कर लेंगे इसका, वगरना सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक पेंडिंग है जो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी कहा है होने के बाद इनकी पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो गई है, जबकि बाकी 8 में उन्होंने प्री अरेस्ट रेस्टोर कर दी है। तो उसको हम देख रहे हैं, वे कर रहे हैं कि क्या हमारे उस सुप्रीम कोर्ट वाले मुकदमे पर ये असरअंदाज होगी, इस तरह करेंगे। क्योंकि दूसरी सूरत ये है कि ये वॉश आउट हो जाएगा ये सारा, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको रेस्टोर करती है तो ये हमने जो कष्ट काटी है, इतनी तफ्तीश की, इतनी लंबी तफ्तीश की 9 मई से, तो ये 17 दिन हमारे ये वॉश हो जाएंगे, जो हम नहीं चाहते कि फिर हमें उस अजियत और कर्ब से गुजरना पड़े। तो हम इसको वे कर रहे हैं, इसको जो प्रोज एंड कॉन्स को, तो आज फैसला इंशाल्लाह हो जाएगा। हो सकता है ज्यादा इम्कान यही है कि हम प्री पोस्ट अरेस्ट बेल में एप्लीकेशन दें। गुजर साहब, पिछली जो समाअत हुई है उस पर आपने कहा था कि 25 से 30 नकात में एक दस्तावेज पेश किए नैब ने, जिस पे उन्होंने जिस्मानी रिमांड मांगा। कल 4 टीमें आई है रात करीबन 12 बजे तक वो यहाँ पर मौजूद थी। आज जब उन्होंने जिस्मानी रिमांड की सजा की तो वो तफ्तीश में उन्होंने क्या बताया, जो कल की तफ्तीश वही 25 नुकात वो रिपीट दोहराए हुए थे, बल्कि उससे ज्यादा थोड़े बढ़ गए जो इन्होंने जो कुछ किया हुआ है, और अब करने के लिए बाकी तो इनके पास रह कुछ नहीं जा सकता। वही रिपीट किया कि जी ये असली जो है ट्रस्ट डीड, ओ भाई तुमने सर्टिफाइड कॉपी ले ली है मुसद्दका नकल,
मुसद्दका नकल इन्होंने मुताल्लिका महकमे से ले ली है, उसके बाद आपको असली क्या करना है, तकाबल कराना है। ओ भाई साहब, तकाबल तो आप 50 दफा करा चुके हो, क्या और तकाबल कराना है आपने। सो इसलिए कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी जिस पर वो ये कर सकते, नालिश कर सकते। बाकी तफन्नुन तबा के लिए माशाअल्लाह वो हर उस पे मौके पर और हर पेशी पर आकर एक नई कथा सुनाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जब उन्होंने 190 मिलियन दे दिया उनका, उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं रह गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वही रकम जो वो वहाँ से नेशनल क्राइम्स एजेंसी ने बरामद की थी, वो जो बराह रास्त ली थी सुप्रीम कोर्ट के डेजिग्नेटेड अकाउंट में, एग्जैक्टली मनोहन वो रकम, बल्कि जो बाकी थी सरप्लस थी वो तो सिंध गवर्नमेंट को दे दी, लेकिन वो पूरी की पूरी रकम उन्होंने वफाकी हुकूमत को दे दी। तो इसलिए उसके बाद तो उनका कोई मुकदमा रह ही नहीं जाता। एक चीज वादा करते हैं कि ये जो 3 और 4 टीमें या 3 टीमें आती हैं, सारा दिन तफ्तीश भी होती है, कुछ 6 घंटे 8 घंटे, तो ये बताइएगा कि क्या मामला, इतनी बड़ी तफ्तीश हो रही है या फिर कुछ चीज़ें सामने भी नहीं आती, आप बार बार वो चीज़ें रिपीट करते हैं, ये हो क्या रहा है? खान हंसता था, मैंने कहा यही बात आपके वाला सवाल किया। वो खान कहता है 2 4 5 10 मिनट के लिए मुझसे ये पूछते थे और उसके बाद गप्पे मारते थे सारा। उसके बाद ये जो है कोई ऐसा चीज नहीं थी कि 3 4 4 घंटे बैठ के सिवाय इसके के गप्पे मारते थे और एक आधा सवाल पूछ के तो उसका जवाब जो जाहिर है वही होता था जो रिपीट चला आता था। तो ये तफ्तीश का एक ढोंग था और तफ्तीश एक ये दिखाने के लिए कार्रवाइयाँ, जिस तरह पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमारी सरकारी महकमे और अफसरान को कार्रवाई दिखाने का बड़ा शौक है, तो ये जो भी इनको भेजने वाले थे उनको कार्रवाई दिखानी थी कि हम 4 टीमें गई हैं और हमने 11 घंटे इनसे तफ्तीश की और हमने इनको सोने नहीं दिया, हमने इनको बैठने नहीं दिया, हमने इनको परेशान किए रखा है। यकीन कीजिए ना खान पर जरा बराबर परेशानी के आसार नहीं थे। हंसता था खान के ये मुझसे इतनी जो टीमें आई हैं सिवाय 2 4 5 मिनट 10 मिनट के, बाकी सारी गप्पियाँ होती थी और ये तफ्तीश का ढोंग रचाने वाली बात थी। आज ना नईम हैदर बंजोता और आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, समात कोई बहुत ज्यादा मजे की हुई है, आपके मुताबिक हो गई है लगता है? नहीं, मैं तो हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ यार खुदारा इस मुल्क के साथ जो है ना चलने दें। इस मुल्क में को अमन की ज़रूरत है, इस मुल्क को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस मुल्क में हम अगर इस तरह से किसी पार्टी को बनाएंगे और किसी पार्टी को हम मुनहदिम कर देंगे, किसी को -1 का फॉर्मूला बनाएंगे और किसी को -2 का फॉर्मूला बनाएंगे, तो ये मुल्क 1 कदम आगे जाता है, 10 कदम पीछे जाता है। तो मैं यही सभी से ये बहुत अदब से अर्ज करूंगा कि खुदारा जमहूर पर रहम करें, जमहूर को उनकी हक़ हुक्मरानी दें, जमहूर को उनका जो है वोट का हक दें, उनको असेंबलियां बनाने का हक दें, उनको हुकूमतें बनाने का हक दें, पाकिस्तान को चलने का हक दें ताकि पाकिस्तान फले फूले और पाकिस्तान आगे को तरक्की करे।